Hello students, in this video we will continue further with metals and non-metals. Okay. Up till now we have seen or we have studied reactions of metals, we have studied reactions of non-metals. Acha, in the previous video I had told you that non-metals can react with metals, right? And the reason is because non-metals जो होता है, non-metals की tendency होती है electrons accept करने की, metals की जो tendency होती है that is to donate electrons. So metals will donate electrons, non-metals will accept electrons. Okay, and that is why they can react with each other, and usually when they react with each other what you get are compounds which are called as ionic compounds. Now why are they called ionic compounds? तो आप लोगों ने लास्ट ईयर कैटायन एंड एनायन के बारे में पढ़ा था. ओके, जब कोई एलिमेंट है X, लेट्स से कोई एटम है X, when it donates electrons, तो मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा. तो आप जब इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा? इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा. So you write it as X plus. So that is cation is developed or cation is produced. So क्या होता है कि whenever metals donate electrons, they get converted into cations. ये cations में convert हो जाता है. उसी तरह से when we talk of non-metals because they accept electrons, उन पे negative charge आ जाता है. जैसे for example you have element Y, when it accepts electrons it will get a negative charge, Y minus. Okay, so this is your anion. So I can say ये जो non-metals होते हैं by accepting electrons they get converted into anions. Okay, now if you look at cation and if you look at anion, both of them have got opposite charges. This is positively charged, this is negatively charged. अब आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ ही है ना, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिंस दे अट्रैक्ट ईच अदर व्हाट हैपेंस इज आप X प्लस एंड Y माइनस को अगर जो पास पास में रखोगे, X प्लस एंड Y माइनस, ये दोनों एक दूसरे को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं कि ये ऐसे जुड़ जाते हैं एक दूसरे से. सो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका X प्लस है, ये आपका Y माइनस है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाता है. देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, and due to this very strong force of attraction they form very strong compounds. These compounds are called as ionic compounds. इनको हम लोग कहेंगे ionic compounds, क्योंकि ionic compounds ions से बनते हैं. And what are ions? ये cation and anion are called as ions. So how do you define ions? Ions are basically electrically charged species. Electrically charged species formed by donating or accepting electrons. Okay, so electrically charged species which are formed by donating or accepting electrons are called as ions. ये दोनों आपके ions है, they are oppositely charged, तो इनके बीच में there is a very strong force of attraction and these are then tightly attached to each other. ये एक दूसरे को बहुत tightly attach हो जाते हैं, आप easily इनको separate नहीं कर सकते. तो ऐसे compound को कहा जाता है ionic compound. Okay, so you have to remember this, whenever non-metals react with metals ionic compounds are formed. Okay, and ये क्यों होता है? The reason is very simple. Metals जो होते हैं, metals have a tendency to donate electrons. Non-metals जो होते हैं, non-metals have a tendency to accept electrons. एग्जाम्पल देखें अब हम लोग. सो एक एग्जाम्पल देखें, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन. ठीक है,
हाँ, मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर इज 12. सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 2,8,2. ओके, सो आउटर मोस्ट शेल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, अब इसको अगर जो ऑक्टेट अटेन करना हो, मैग्नीशियम, सॉरी दिस इज Mg, मैग्नीशियम को अगर जो ऑक्टेट अटेन करना हो तो ऑक्टेट वो कैसे अटेन कर सकता है? आइदर बाय एक्सेप्टिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स, ताकि फिर वो हो जाएगा 2,8,8, या फिर बाय डोनेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा तो बच जाएगा बस 2,8. नाउ इफ यू लुक एट द 2, दिस इज डिफिकल्ट ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना इज डिफिकल्ट, दिस इज रिलेटिवली इजी. तो ये चीज होगी, दिस विल नॉट टेक प्लेस. सो मैग्नीशियम क्या करेगा? मैग्नीशियम विल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स. Now when it donates 2 electrons, therefore magnesium will get converted into magnesium 2+. ठीक है, so by donating 2 electrons इस पे +2 चार्ज आ जाएगा, and let me write it this way, 2 electrons. ठीक है, so magnesium के पहले outer most shell में 2 electrons present है, 1 and 2. I am only showing the outermost shell, एंड आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स आप डॉट या क्रॉस से दिखा सकते हो. बट व्हेन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम +2, तो मैग्नीशियम +2 में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं है, देखो, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स तो निकल चुके हैं. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8. सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2,6. So again there are 2 possibilities, either it can donate 6 electrons or accept 2 electrons. अब obviously donating 6 electrons is extremely difficult, तो ये होगा नहीं, तो इसको हम लोग क्रॉस कर देता है. Accepting 2 electrons is possible. So what will oxygen do? Oxygen has outermost shell में it has got 6 electrons, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6. okay, on accepting 2 electrons, ये 2 electrons कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है. on accepting 2 electrons, what will happen is oxygen will now have 1, 2, 3, 4, 5, 6, and ये जो 2 electrons है, 2 dots में आपको अलग से यहां पे बनाऊंगा. So now this is your oxygen -2, because it is getting 2 extra electrons, so it has got -2 charge. Okay, I hope you have understood this. अच्छा, so अब now finally you have a cation, you have anion. ये जितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है वो उतने सारे ऑक्सीजन, दोनों इलेक्ट्रॉन्स वो एक्सेप्ट कर रहा है. ओके, तो अब आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से आ रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये एक्सेप्ट कर ही रहा है. तो फाइनली आई कैन राइट इट दिस वे, इसको मैं ना इस तरह से लिख सकता हूं. तो आपका जो कंपाउंड बनेगा दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज रिटन दिस वे, ये Mg+2 है, यू राइट इट एज Mg+2. एंड ऑक्सीजन जो है, आप ऑक्सीजन को ऐसे लिखोगे, ऑक्सीजन -2. इफ यू वांट यू कैन शो इट दिस वे. इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, इस पे तो अब कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, आउटर मोस्ट शेल में तो कुछ नहीं दिखा है. यहाँ पे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 2 और इलेक्ट्रॉन्स 7 एंड 8. ठीक है, सो दिस वुड बी योर मैग्नीशियम ऑक्साइड. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके, तो इस तरह से ये आयोनिक कंपाउंड बनता है. ओके, और आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं. मेटल्स जो होते हैं दे विल फॉर्म कैटायंस बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, नॉन मेटल्स जो होते हैं दे विल फॉर्म एनायंस बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. और एक एग्जाम्पल करें.
Let's look at aluminium chloride, AlCl3. Okay. Now, if we talk of aluminium, aluminium का configuration क्या होता है? Aluminium का atomic number is 13. तो इसका जो configuration होगा ये होगा 2,8,3. This would be the electronic configuration of aluminium. Obviously, aluminium has 3 electrons in its outermost shell. So 1, 2, 3. It will have a tendency to donate 3 electrons. So it will form Al plus 3 and it will donate 3 electrons. Correct? So this will form a cation. ये cation है. So one aluminium atom is giving you 3 electrons. Now if we focus on chlorine, chlorine पे अगर जो आप देखोगे तो chlorine का जो electronic configuration है वो क्या होता है? Chlorine का atomic number is 17. So its electronic configuration is 2,8,7. So it will have a tendency to accept 1 electron. It will accept 1 electron. Okay. So chlorine, it has 7 electrons around itself. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It will accept 1 electron and form 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है या यहाँ पे इस तरह से लिखा होगा. ओके. एंड दिस बिकम्स क्लोरीन माइनस. इस पे -1 चार्ज होगा क्योंकि ये एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है. नाउ इफ यू सी ओवर हियर, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है बट क्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए ना. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए तो क्या होगा? और 2 क्लोरीन एटम्स होंगे एंड दे विल ऑल्सो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स to form Cl-1. Cl-1. इसी तरह से 2 और anions फॉर्म होंगे. सो टोटल यू विल हैव 3 क्लोरीन anions. सो अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है एल्यूमिनियम. क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अब आपके तीनों इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हो गए. तो नाउ आई कैन से दैट 1 एल्यूमिनियम एटम विल रिएक्ट विथ 3 क्लोरीन एटम्स. ओके. सो इवेंचुअली जो आपका कंपाउंड बनेगा वो ऐसा होगा. आपका कंपाउंड, लेट मी राइट इट ओवर हियर, इट विल बी Al+3. यहां पे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा ना, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स इसने दे दिए. ओके. एंड क्लोरीन के केस में ऐसा होगा, यू हैव क्लोरीन, लेट मी ड्रॉ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये एक इलेक्ट्रॉन जो इसको एल्यूमिनियम से मिल रहा है, दिस इज 8. एंड ऐसे 3 क्लोरीन एटम्स होंगे, हर एक पे चार्ज जो होगा दैट विल बी -1. -1 मैं अंदर लगा रहा हूं. ओके. सो इट शोज दैट ईच क्लोरीन एटम has 1 negative charge. So total there are 3 chlorine atoms. So there will be 3 negative charges. And this becomes your AlCl3, aluminium chloride. So आपको अब ये समझ में आया. आपको बस ये इंश्योर करना है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं उतने सारे एक्सेप्ट भी हो रहा है, या जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए उतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल रहे हैं. We will do one more example so that this concept becomes more clear to you. Okay. जैसे यू हैव सोडियम ऑक्साइड या सोडियम सल्फाइड. ओके. नाउ सोडियम जो है, सोडियम का एटॉमिक नंबर इट इज 11. इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,1. इट इज वेरी सिंपल, इट विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन. सो सोडियम which had 1 electron in its outermost shell, by donating 1 electron it will get 1 positive charge. Okay. Now we will talk about sulfur. Sulfur का atomic number is 16. इसका electronic configuration is 2,8,6. Now octet complete करने के लिए it will accept 2 electrons. Okay.
ना जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा तो व्हाट विल हैपन इज, एक मिनट, what will happen is sulfur, it has already got 1 2 3 4 5 6 electrons. It will accept 2 electrons and it will form 1 2 3 4 5 6 7 and 8. इस पे जो चार्ज आएगा that will be -2. ठीक है. Now you can see that what happens is you need 2 electrons over here, but सोडियम जो है उससे तो एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है. तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, what will happen is we will need, आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, तो we will need 2 sodium atoms. ठीक है. फाइनली आपका जो कंपाउंड बनेगा वो ऐसा होगा कि व्हेन यू हैव 2 सोडियम एटम्स, दे विल गिव यू 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म 2 Na+1. इसको बस मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है बस. ओके, सो फाइनली जो आपका कंपाउंड बनेगा वो ये होगा Na+ के 2 आयंस एंड यू हैव S-2. यहाँ पे आप ये इलेक्ट्रॉन्स दिखा सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 and 8. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इसमें अब आपको कोई भी डाउट नहीं है. ओके, ठीक है. सो नाउ फाइन. ओके, so once we are done with this, now we will look at some of the properties of ionic compounds. Okay, properties of ionic compound. Okay, so first one is physical nature. Now ये जो ionic compounds होते हैं, these ionic compounds are crystalline in nature. Okay, now when I say crystalline का मीनिंग क्या होता है, इनका ना प्रॉपर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ना. ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस तरह से होता है या किस तरह का होता है, सो आप ना एक ऐसा क्यूब इमेजिन करो. तो ये जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, इनकी जो पोजीशंस होती है, इनकी पोजीशंस फिक्स्ड होती है. द पोजीशंस आर फिक्स्ड. ओके, सो मान लो ये यहाँ पे कैटायन है, यहाँ पे इन कॉर्नर्स पे मान लो कैटायंस प्रेजेंट है, तो यहाँ पे बीच में जो होगा वो शायद एक एनायन प्रेजेंट होगा. सो आप समझ रहे हो बेसिकली क्या होता है कि व्हेन आई से क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मतलब the positions of cations and the position of anions are defined, they are fixed. And these cations and anions ये अपनी position इसलिए नहीं छोड़ते because there is a very very strong force of attraction between opposite ions. Okay, so ये crystalline जो substances होता है, okay, there is a very strong force of attraction between these opposite charges. Okay, and due to this, okay, even if you heat them, they will not easily get separated. आराम से separate नहीं होंगे. Okay, these compounds are usually brittle in nature. These are brittle in nature. When I say brittle, मतलब आप इन पे pressure apply करो ना, तो pressure apply करने पे they will break into pieces. Okay, मान लो कि आप shear pressure apply कर रहे हो. shear मतलब आप मतलब ऐसा force लगा रहे हो. If this is the type of the force that you apply, so they will break into pieces. Okay, so these are brittle. So पहला point ये है कि they have a crystalline structure. There is a very very strong force of attraction. They are very hard. अच्छा, दे आर ब्रिटल मीन्स कि व्हेन यू अप्लाई टैंजेंशियल फोर्सेस, वो लोग वो उस फोर्स को सस्टेन या हैंडल नहीं कर पाते. ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. सो इनका ऑब्वियसली बिकॉज ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग होता है
कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी वेरी हाई। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दैट इज वेरी वेरी हाई। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट दीज आयंस। Heat is required to separate the ions. ठीक है, ओके। यूजुअली जैसे सोडियम क्लोराइड है, कॉमन सॉल्ट है, उसका मेल्टिंग पॉइंट पता है कितना होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस। इट इज वेरी इट हैज गॉट अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, द नेक्स्ट property that we are going to look at is basically the solubility. ना ये जो आयोनिक कंपाउंड्स होता है, ये इनको डिसॉल्व होने के लिए इनका ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, पहले हमें उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ब्रेक करना पड़ता है। एंड व्हेन आई से आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ब्रेक करना पड़ता है, इसका मतलब यहाँ पे जो मान लो ये एनायंस है एंड ये जो कैटायन है, आपको इन कैटायन, इस कैटायन एंड इन एनायंस को आपको सेपरेट करना होगा ना। सेपरेट करने के लिए आपको एक पोलर सॉल्वेंट की जरूरत होती है। ओके, सो पोलर सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द आयंस। आयंस को सेपरेट करने के लिए एक पोलर सॉल्वेंट की जरूरत होती है। ओके, नाउ इनको अगर जो आपको सेपरेट करना हो, सो डिसॉल्व करने के लिए, आई रिपीट इट, डिसॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इन आयंस को सेपरेट करना है। एंड इन आयंस को सेपरेट करने के लिए आपको पोलर सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है। पोलर सॉल्वेंट क्या होता है? कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, सी आप लोगों को एटम का स्ट्रक्चर पता है ना, यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज है एंड ये इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व करते हैं तो एवरेज आपका नेगेटिव चार्ज ये इस तरह से होता है। सो इस नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर आप बोलोगे तो सेंटर कहां पे होगा? यहीं पे ही होगा। तो यूजुअली क्या होता है कि आप कोई भी एक सिंगल एटम लेते हो तो देयर इज अ चांस दैट, और देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि उसका पॉजिटिव चार्ज सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर एक ही जगह पे होता है। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर भी ऐसे ही होता है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर एक ही जगह पे होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ओके, एंड कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर्स ये एक ही जगह पे नहीं होते, ये थोड़े से सेपरेटेड होता है। पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे होता है, नेगेटिव चार्ज जो होता है वो दूसरे साइड पे होता है। So these are your called as polar molecules. ठीक है, सो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, ये पोलर मॉलिक्यूल्स है। ओके, नाउ पोलर मॉलिक्यूल्स का एडवांटेज क्या होता है? बिकॉज इनमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड है। अच्छा, इन मॉलिक्यूल्स का देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ डाइपोल मोमेंट। अपना एक डाइपोल मोमेंट होता है, इनको डाइपोल्स कहा जाता है because there are two different poles, a positive pole and a negative pole. Okay, now ये डाइपोल्स क्या करते हैं? ये डाइपोल्स यहाँ पे जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस है इनको सेपरेट करने में हेल्प करते हैं। सो डाइपोल्स हेल्प टू सेपरेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। They help to separate your positive and negative ions. पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस को सेपरेट करने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, सो दैट इज वाई ये आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो पाते हैं, बिकॉज ये पोलर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हेल्प टू सेपरेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। बट वही अगर जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल इनको सेपरेट करने में हेल्प नहीं करता, तो ये आयोनिक कंपाउंड्स डू नॉट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? सो सारे जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं ना, ये हो गया जैसे बेंजीन,
फिर केरोसिन, ईथर। सो इनके अंदर आयोनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व नहीं होते। पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल इज वाटर, and ionic compounds will easily get dissolved in water. Okay, so ionic compounds के अंदर भी charges होता है, इसके अंदर भी charges होता है, polar molecules के अंदर भी charges ऐसे separated होता है. So that is why ionic compounds can dissolve in polar solvents. Okay, you have to remember this. So I can just write this: ionic compounds dissolve in polar solvents. ठीक है, fine. Now the next point is about conductivity and conduction. Okay. अच्छा, so we'll talk about the conductivity of electricity, conduction of electricity. Now ideally when I say electricity, so for conduction of electricity हमें चाहिए free charges are required. अब when we talk of ionic compounds के अंदर charges तो होते हैं, but the problem is they are not free ना, because इतना strong इनके बीच में force of attraction होता है. ये charges जो होते हैं they are fixed at their places. These are fixed charges. So because they are fixed charges, they cannot move because of very strong force of attraction. They cannot conduct electricity. So I can say ionic compounds do not conduct electricity in solid state. Okay. But if you can do two things over here. First is, if you dissolve it in water, dissolving it in water, that is, जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा aqueous solution of ionic compound. तो हमने देखा ही है कि पानी में जैसे ही आप डिसॉल्व करते हो, ये जो आयन्स है ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं तो दे बिकम फ्री टू मूव, प्लस माइनस, दीज बिकम फ्री टू मूव, and because they are free to move, they can conduct electricity. So I can say ionic compounds, when you dissolve them in water, तो उनके जो aqueous solutions होते हैं can conduct electricity. Second, if you melt this, so molten ionic compounds, molten के जगह पे बहुत बार हम लोग word जो use करते हैं that is fused. When you melt ionic compounds, तो वहां पे भी यही हो जाता है, ions get separated. And ये जो separated ions होते हैं, they are free to move. And because they are free to move, even this will conduct electricity. So ionic compounds can conduct electricity either in their molten state or fused state, or they can conduct electricity if you dissolve them in water. तो उनके जो aqueous solutions होता है, those aqueous solutions will be good conductors of electricity. Okay, so I hope you have understood this. इसमें अब आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं है. Okay, solid state में क्या होता है कि because इतना strong force of attraction होता है कि ions are fixed, and because they are fixed, they cannot conduct electricity. ठीक है. One last point now, ionic compounds के लिए there is one more name, that is electrovalent compounds. So when you see the word electrovalent compounds, it means one and the same. It means ionic compounds. ठीक है.
Okay, then students, we will end this session over here. ठीक है? Fine. Bye.